नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब आदेश देगी सेना पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Second issue is, as far as the military is concerned, military is always ready to make sure that this ceasefire understanding is never broken, because it is in interest of both the nations. But if it is broken at any point of time, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are भारत आर्थिक विकास और अवसरों में अभूतपूर्व वृद्धि का गवाह बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से वर्ष भारत 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। ये कहना है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी का। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। In our tradition, Amrit Kal is regarded as the most auspicious time to start anything new. And each of you are starting your professional journey in this period. As the Amrit Kal unfolds, India will witness an unprecedented explosion in economic growth and opportunities. From a $3 trillion economy, India will grow to become a $40 trillion economy by 2047, ranking among the top 3 economies of the world in your working life. In other words, a bright future beckons you. Be ready to step out confidently when opportunity knocks on your door. This university has made you future ready because it researches and teaches energy with a very comprehensive perspective. 3 game-changing revolutions will govern India's growth in the decades ahead. The clean energy revolution, the bioenergy revolution, and the digital revolution. Together, they will transform lives in ways unimagined. While the clean energy revolution and the bioenergy revolution will produce energy sustainability, the digital revolution will enable us to consume energy efficiently. All 3 revolutions will together help India and the world save. असम और मेघालय के बीच एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प की वारदात सामने आई है। ताजा विवाद में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मेघालय के 5 लोग और एक फॉरेस्ट गार्ड शामिल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेघालय सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए तनावग्रस्त 7 जिलों में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। आपको बता दें कि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मंगलवार सुबह 3 बजे मेघालय सीमा पर अवैध तरीके से लकड़ियां ले जा रहे ट्रकों को रोका गया था। इस दौरान ट्रक ने भागने की कोशिश की तो फॉरेस्ट गार्ड ने फायरिंग की, जिससे कि ट्रक का टायर पंचर हो गया। इस दौरान 3 लोगों को फॉरेस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में मेघालय की तरफ से लोग हथियार लेकर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग करते हुए फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस टीम का घेराव कर लिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं गोलीबारी में एक फॉरेस्ट गार्ड भी मारा गया है। An unfortunate incident occurred at Mukro village in West Jayanthe Hills district, where 6 persons have died due to firing by Assam police and Assam forest guards. I would like to express my deepest condolences to the bereaved families who have lost their loved ones. As per the reports, a truck
carrying timber was pursued by the Assam Forest Guards with the Assam Police and was detained by the Assam Police and Assam Forest Guards at Mukro village in West Jayante Hills district. On hearing this, people from Mukro village gathered in large numbers and surrounded the Assam Police and सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए काफी आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं आयोजित किया गया उसमें मेले के दूसरे चरण में आप 70,000 युवाओं को अन्य देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में मैं इनसे पूछता हूं 27 साल में तुमने क्या काम किया, तो कहते हैं हमने केजरीवाल को खूब गालियां दी। ये काम किया इन्होंने 27 साल में, और इनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। कह रहे डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। और बड़ी बात ये कि ये नए अवसर युवाओं के लिए